صبح بدا من طلعته. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو آس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. کو آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو. کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائے جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور اوپر. مٹی ڈالتے گئے اور گائے وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی. اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھائی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا. بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ 2 بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. او بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود.
हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पे चढ़ के जरा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियां पतली पतली थी, टांगे पतली थी, वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया तो बाज लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे, माज़अल्लाह देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियां हैं, क्या अंदाज है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियां वाकई पतली थी, और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियां, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, कयामत के दिन जब मेजान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियां होंगी, जब इनका मेजान पर वजन तुले तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे। फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी, रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना, और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में छोड़े। आप किसको कायल कर रहे, जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाजा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमजोर करती है, बिला वजह हम कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़े बेनियाज हो जाए। छोड़े इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं, लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई, लिखने वाले खुदा जाने कहां हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हो, उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा। कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी। ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, हो भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास न जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब और सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें, तोहमत वाली जगह से बचे, तोहमत का मौका ना दे। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाजा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना जरूरी नहीं होता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियां दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे साथ, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूंगा। इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत
और अपनी जान को महफूज कर लिया, जो फितने वाली जगह से बच गया। जहां तूमत लग सकती है उस जगह से बचे। जानबूझ के लोगों को मौका ना दे बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दे। जामे तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाजत मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाजत दे दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूं। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ देता है, आप मुझे इजाजत दे, मैं इसे कत्ल कर दूं। अब वो चूंकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाही, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाजत दे दे, ये तिरमिजी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचे जहां तोहमत लग सकती है, जहां बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दूंगा तो लोग कहेंगे कि वो अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू। लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं तुहमत वाली जगह से। बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्लाह शरीफ, इसमें एक पीछे मकाम है जिसको हतीम कहा जाता है। ये खाना काबा का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले जब कुरैश मक्का ने इसे तामीर किया ना दोबारा से, तो उन्होंने चंदे का कोई इस तरह का मिजाज बनाया था कि उस बंदे से पैसे ले लें जिसके बिल्कुल ही जायज हो। इस तरतीब से उन्होंने खाना काबा की तामीर की कि फिर वो सारी तामीर न कर सके, हतीम बाहर रह गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, आयशा, अगर तुम्हारी कौम जाहिलियत के करीब ना होती, क्योंकि अभी करीब करीब जाहिलियत छूटी है ना, अभी लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया है, फरमाया अगर ये जाहिलियत के करीब ना होते तो मैं काबे को उन्हीं बुनियादों पर दोबारा बना देता जिन बुनियादों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन चूंकि ये जाहिलियत के करीब हैं, इनकी समझ में चीज नहीं आएगी, ये शक में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बात सादा लोग इबहाम का शिकार होते, इबहाम का। हमारे उलमा ने इस तरह किया कि बड़े तय करके अकायद के उन्वानात उम्मत तक पहुंचाए। हर आदमी हर शोबे का स्पेशलिस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग बातें मरीज के सामने करने वाली नहीं होती, वो सिर्फ लवाहिकीन को बताने वाली होती। फिर कुछ लोग और आए जिन्होंने कहा कि हम तो एफिशिएंसी दिखाएंगे, कुछ खास हर बात खोल कर लोगों के सामने रखेंगे। उसका नुकसान फिर ये होता है कि सादा लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो फिर जब कहते हैं हर चीज डिस्कस कर लेनी चाहिए तो फिर बातें दूर निकल जाती हैं। फिर लोगों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी खताओं को डिस्कस करना शुरू किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अगर हजरत आदम ये लफ्ज कहे तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गुलाम और उम्मती और बेटा उठ के ये लफ्ज कहे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज, ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बिला वजह बहस कर। हमारे कुछ लोगों को शौक है खबरों में रहने का, वो ऐसी ऐसी बातें छेड़ते हैं जिनसे ना वो खबरों में रह सके। मैंने देखा है, वो कहते हैं जी मैंने कोई अनोखी बात करनी है। भैया अनोखी बात करने से बंदा मशहूर तो हो जाता है। हमारे जमाने में मशहूर ही वो होता है जो दूसरों से थोड़ा हट के बात करे, अनोखी करे। वो हमारे लतीफा लिखा है ना, एक अहले अरब का, एक हिजा नाम का अरबी का एक लताइफ सुनाने वाला शायर है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने एक दफा कह दिया था गधा खाना जायज है, और बड़े बड़े उलमा उसके घर चले गए कि भाई कोई दलील, कोई जुजिया, कोई कहां से, कोई किताब, कोई हवाला, कोई शय। उसने कहा रोज आओगे, एक एक बंदे को बताऊंगा, इकट्ठा स्टेज लगाओ, एक की दफा हवाले देता हूं, रोज नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना। तो ये अनोखी बात जो कर रहा था, तो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब कयामत तक कहोगे तो सही ना, वो उस मौलवी दे घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं सी कदा खाना जायज, वो
चलो बदनाम जो होंगे तो क्या, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना, बदनामी सही सही, शरारत सही सही, शैतानियत सही सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश अर्ज करूं, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना, लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ, तो मिट्टी के तेल जाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज है नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है, वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं क्योंकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरी उज़र है ना, हुजूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ हो, तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे खुशबू आती थी और लालटेन भी रोशन होती थी। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस खादिम से फरमाने लगे कि अब लोग तो आएंगे ना, तो हमारे इलाके में तो सारी दुनिया मिट्टी के तेल से ही चलाती है, तो अब आपने खुशबू वाला तेल ला के डाल तो दिया है इसके अंदर लालटेन में, पर ये लोगों को बताएगा कौन कि ये तेल वो नहीं है। लोग तो यहां से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है, फरमाने लगे आप फर्जों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाएं और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल है। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज, हम ना कुछ बदगुमानियां लोगों के अंदर लोग डालते। हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में जब से सियासी फिरका वारियत शुरू हुई है, सियासी, हमारी कौम का मिजाज इतनी बुरी तरह खराब किया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो बड़े संजीदा पढ़े लिखे, उनकी गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ के बारे में इतनी लूज कर दी गई है, इतनी कमजोर कर दी गई, इतनी खौफनाक कर दी गई है कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ था। ये मिजाज जो लोगों को दिया जा रहा है, कौमें अपने अखलाक के तौर पर जिंदा रहती है। बद इखलाकियां कभी भी इंसानों को ऊंचा कर सकती, पीछे रह जाते हैं लोग। तहजीब किसी सोसाइटी का हुस्न होता है, और अगर एक सियासी मुखालिफ के लिए आपका ये वाला मिजाज बन जाए, अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए आप इन चीजों का सहारा लें, ये दुरुस्त नहीं है। अखलाकी रवैये मैं कहूंगा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है वो 100% रखे जो उसकी समझ में आती है, लेकिन अपने इखलाकी मिजाज को कभी कमजोर ना होने दे, इखलाकी रवैया कभी कमजोर ना होने दे। ये कैसे हो सकता है? देखें, अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वो वही बातें कर सकते थे जो उनके मिजाज की थी, जो आज तक लोग किसी भी दीनदार के बारे में करते। तो उन्होंने वही बातें आके की थी जनाब अबू तालिब के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर माज़अल्लाह इनको दौलत चाहिए तो हम देते हैं। बड़े से बड़े मुखलिस आदमी पर आज लोग दावा नहीं करते कि दौलत के लिए लगा हुआ है। उन्होंने कहा दौलत चाहिए तो देते हैं, अगर किसी खातून से निकाह करना चाहते हैं तो करा देते हैं, सरदारी चाहिए तो दे देते हैं। अब ये सोच ही इतनी है, इससे आगे जाती नहीं। वो माज़अल्लाह हुजूर के बारे में और भी बातें करते, ये शायर हैं, ये जादूगर है, ये फलां है, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने कभी भी उनकी जाती जिंदगी को डिस्कस नहीं किया, कभी नहीं किया। अबू जाल शराब पीता था, लेकिन हुजूर ने कभी सोसाइटी में ये बात लोगों के सामने बयान नहीं की। वो लोगों के पैसे दबा लेता था, कई जगहों पे हुजूर ने पैसे निकलवा के दिए, लेकिन जगह जगह गली गली खड़े होके हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ये इस तरह का है। आप अपने मुखालिफिन के बारे में जरूर क्लेम करें, सबूत के साथ जरूर बात करें, ये जरूरी है, लेकिन आपका रवैया इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि लोग समझे कि ये कौम तो इखलाक से हट गई है। आप इख्तलाफ करें, लेकिन इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं, उस अदब के दायरे के अंदर है कि सहाबा के बीच भी राय का इख्तलाफ हो जाता है, हो जाया करता है। हुजूर उस इख्तलाफ को कबूल करते, भाई हो जाता है राय का इख्तलाफ अपनों में, लेकिन उसके अंदर इंसान तौहीन पे उतर आए,
उसका लहजा इस तरह का हो जाए, इस तरह की बाजारी गुफ्तगू की जाती है, तो महसूस होता है कि ये तरबियत का फुकदान है, ये लहजे बावकार लोगों के नहीं हुआ करते। लहजे को कभी बुरा ना होने दे, अंदाज को। लोग आपको छेड़ेंगे, अपनी जगह पे खींच के लाने की कोशिश करेंगे, बड़ा कुछ लोग करेंगे, लेकिन आप अपनी जगह से आप तब्दील नहीं होंगे। आप कहेंगे यार मेरा एक मेयार है, मेरी एक हैसियत है, मैं अपनी हैसियत छोड़ सकता, मैं अपनी हैसियत नहीं छोड़ सकता। हर बंदे को आप डिस्कस करेंगे। तो तुहमत वाली जगह से जरूर बचे, बदगुमानी से जरूर बचे, लेकिन हर शख्स को उसके मेयार के मुताबिक उतर का जवाब देना, ये बावकार लोगों का स्टेटस नहीं होता। वो कहते हैं जा बात कर, जाके तू कौन होता है, तेरी बात करें। अब हम हर शख्स के मुंह लगेंगे, कैसे हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, सही बुखारी में मौजूद है, आपकी अहलिया हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ थी। रात का वक्त था, हुजूर गुजर रहे, तो सहाबा कुछ खड़े थे, तो हुजूर ने एक को बुला के कहा कि ये मेरी बीवी है, सफिया है। अर्ज करने लगे हुजूर मुझे मेरी मां रोए, मैं कोई आपके बारे में बदगुमानी करता? तो हुजूर ने जवाब में क्या कहा? महबूब फरमाने लगे जिस तरह रगों में खून गर्दिश करता है ना, शैतान भी इसी तरह गर्दिश करता है। वह हुजूर बता रहे हैं किसी वक्त भी बदगुमानी पैदा कर देता। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपनी अहलिया के साथ जा रहा हूं, मेरी बीवी है। कोशिश करें कि आप उस जगह से बचें जहां बातें हो रही हों। और इस पहलू पे तीसरी गुजारिश इस उन्वान पर यह है कि अगर किसी के बारे में बातें हो रही हो तो फटाफट उसका हिस्सा बनने की कोशिश न करें, बल्कि आपके पास जब तक कोई शरई सबूत नहीं है तब तक आप उस बात का हिस्सा ना बने। हमारे यहां बात हो रही होती है तो दो चार बंदे दौड़ के ना अपना भी हिस्सा डालते। बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात अर्ज करूंगा, बात लंबी होती तब है जब कोई बंदा दरमियान में कह देता है ना नहीं तुझे तो थोड़ा पता है, थोड़ा मैं भी करता हूं। वो कई दफा वादा माफ गवाह बन जाता है, जाके दूसरों को खबर करता है उसने ये कहा है। हालांकि बंदा उससे पूछे कि अगर उन्होंने कहा था तो तू इतना सज्जन था तो वहां जवाब देके क्यों नहीं आया? तुझे चाहिए था वहीं जवाब देता, वहीं जाके जवाब दे देता। एक बुजुर्ग की खिदमत में मैं एक दफा हाजिर था, एक बड़े आलिम थे, तो उनके पास आके एक शख्स ने कहा कि फलां आदमी आपके बारे में ये बात कर रहा था। तो वो हंस पड़े, फरमाने लगे फिर आप कहाँ थे? कहने लगे मैं वहीं था। फरमाने लगे मेरा और आपका रिश्ता किस तरह का है? कहने लगे जी मैं तो शागिर्द हूँ, इरादतमंद हूँ। तो फरमाने लगे फिर आप मेरे पास सवाल लेके आ गए हैं, आपने वहां जवाब कोई नहीं दिया। फरमाने लगे अब तू मेरे सामने बैठ, पहले इस सवाल का जवाब मैं तुझे दूं, पहले तुझे कायल करूं। अगर तू कायल होता ना तो फिर तू ये बात लेकर मेरे पास ना आता, फिर तो वहां तू क्लियर कर रहा था तेरे अंदर कजी है, तू बात का हिस्सा बना, और मेरे नजदीक उससे बड़ा तू मुजरम है कि तूने बात को सुना है। वो तो कोई है और तू तो अपना था, तूने अपना होके ये बातें सुनी, तूने हाँ की, तू वहां बैठा रहा, तू अपना था। और हुजूर ने फरमाया मोहब्बत तो बंदे को अंधा बहरा और गूंगा कर देती, जो किसे दाशक होवे उते गल उसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। तूने सुन कैसे ली? तेरे कानों ने गवारा किया? पहले तो तू मुतमईन हो ना, तू अगर मुतमईन होता तो तू बात आगे वहीं जवाब दे के आता। तो तू ही गैर मुतमईन है तो मैं किसी और को क्या जवाब दूं? हुजूर के यहाँ इमाम हसन की जब विलादत हुई, नवाज से तशरीफ लाए, तो मुसर्रत का वक्त है ना, खुशी का। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु सलाम ने ना उनके सर से बाल उतरवाए कि चांडा खीदा है पंजाबी जी। हुजूर ने बाल उतरवाए तो तराजू के एक पलड़े में वो बाल रखे और दूसरी में चांदी रखी, और बालों के वजन के मुताबिक चांदी तोल के अल्लाह के रस्ते में खैरात फरमाई। आप इस बात को समझे, फिर एक दफा समझे। नौजवान जो रोज सवाल पूछते हैं ना मिलाद का, वो जरूर तवज्जो करें। भाई घर में तो महीना महीना रोटी नहीं पक रही, लेकिन जब नवाज से आए, खुशी का वक्त आया, तो अकीका करने का टाइम आया तो एक बकरा नहीं ज़िबा किया, हुजूर ने 2-2 बकरे ज़िबा फरमाए। सारा साल लोगों को गरीब नहीं याद आते, मिलाद शरीफ वाले दिन याद आ जाती सारा साल। और जिस चौधरी ने 15 खाने पकाए ना अपने बच्चे की शादी पर, 15 खाने, उसको उस वक्त नहीं गरीब याद आते, उसे भी मिलाद शरीफ वाले दिन गरीब
कहते न करो गरीबों को दे दो। तो मैं कहता हूँ चौधरी साहब आप तो मिलाद की महफिल में आते नहीं, यहाँ तो पहले ही सारे गरीब आते हैं, आप तशरीफ लाते हैं कोई? हमने कभी देखा है तगड़ा बंदा जुलूस में जाता हो ना? सवाल वो तो जाएगा जब MP उसे कहेगा कि गाड़ी में 15 बंदे भर के ला जलसा है, वो तब जाएगा। जाते हैं ये भी, कहते राती मौलवियां सौन नहीं देता, सारी रात जलसा कीता है। तो मैं कह इलेक्शन आ लेंदे तुसा भी नहीं सौन देना। ओ खुदा के बंदो, पोस्टर भी छुपवाते हो अपनी जेब से, फ्लैक्सें भी जेब से बनवाते हो, अपने दरवाजे पे दफ्तर भी खोलते हो, सारा कुछ ही करते हो। किसी से मसला नहीं पूछने जाते कि जायज है कि ना जायज है, कुछ भी नहीं करते। और फिर इसके नारे लगा के उसे इलेक्शन जितवाते हो, 6 महीने के बाद कहते हो बंदा गलत निकला है। झूठों के नारे लगाते हो, रोज सजदा साफ करते हो। अपना नसीब देखो और सुन्नी का नसीब देखो, जब से पैदा हुआ है मदीने वाले के नारे लगा रहा है, और कयामत तक दोबारा सजदा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा महबूब के नारे लगते रहेंगे। मिलाद शरीफ इजहार मुसर्रत है, इजहार एक खुशी का मौका है। मेरी तरह देखिए जी, मिलाद का मौका मैं आपको पीछे दलाइल दे चुका हूं, और मैंने सारी रिवायात से आसिता से अर्ज की कि जब खुशी का मौका होगा तो बात खुशी की जाएगी, उस वक्त खुशी ही की बात की जाएगी। अब मिलाद शरीफ का माना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उम्मत हुजूर के दुनिया में आने पर खुशी का इजहार कर रही है। उसके लिए कोई शर्त नहीं कि आप लाजमी महफिल करें, ये शर्त नहीं, ये शर्त है कि आप जुलूस ही निकालें, क्योंकि जायज और बानाखेज खुशी नाम ही महफिल का है, जुलूस का है, लिहाजा ये एहतमाम कर लिया जाता है। वरना मैं दोस्तों को ये मशवरा दिया करता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ यार हमारा ना ज़ौक बताए कि हमें खुशी है, यानी हमारी तबीयत बताए कि हमें, नहीं समझ आई मेरी बात की? जब खुशी होती है तो तबीयत से पता चलता है ना खुशी है। नींद तो नहीं आ रही आप रात को? मेरा गला आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, और मेरे बुजुर्गों को हुक्म था तो मैंने दोस्तों को बताना भी नहीं मुनासिब समझा कि मेरी सेहत ठीक नहीं। मैंने कहा शक में भी डालने की जरूरत नहीं, जाना है तो लिहाजा जाना ही है। तो आपका तो नहीं ना खराब माशाल्लाह? तो ये जो बंदे आंखें थोड़ी थोड़ी बंद कर रही हैं, हमें ब्लैकमेल ना करें, हमें पता है डिशती को नहीं सौंपा, ये बिल्कुल आंखें ना बंद करें, खोल के बैठे, पता है हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। अब मेरी बात गौर से सुने मेरे भाई, समझ लें इस बात को कि आपकी ना तबीयत बताए कि आपको हुजूर के आने की, यानी ज़ेन बताए, आपका मिजाज बताए। एक जज्बातीपन होता है, वो जज्बातीपन, आप सवेरे सवेरे उठे मिलाद शरीफ वाले दिन, चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ी, तो पानी का प्याला कभी अपने हाथ से नहीं पिया, घर वाले देते हैं, नौकर लाता है, मुरीद शागिर्द लाते हैं। लेकिन मिलाद शरीफ वाले दिन सवेरे उठे, झाड़ू ले लिया, मस्जिद की गली में झाड़ू दे रहे थे, दौड़ के एक बंदा आया, उसने कहा हजरत साहब आपको क्या हुआ? लाए मैं देता हूं। उसने कहा जा पीछे हट जा, मुझसे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी, आज मैं खुद झाड़ू फेरूंगा, आज मेरे महबूब का मिलाद है। आपका ना मिजाज पता है कि आपको खुशी है। अल्लाह आपको जज़ाए, अल्लाह आपको बरकत, मैं तो नौकरी देने आया हूँ, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरी सिर्फ बात सुनिए जी आप हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी हो, यानी मुसर्रत हो। एक आदमी पजारों पे गुजर रहा था, पीछे से रेडी वाला आया, उसने टक्कर मारी और गलत उसने मार दिया, वो पजारों वाले का नुकसान कर दिया 20,000 का। वो रेडी वाला कांपने लगा कि ये अब पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा, गलती हो गई, जानवर की लगामें खींची थी, खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही ब्रेक लगी तो पजारों वाले ने शीशा नीचे किया और पीछे देख के मुस्कुराया और कहने लगा आज तुझे कुछ नहीं कहना, आज मेरे नबी का मिलाद है। आज कुछ नहीं कहना इसलिए कि आज मेरे रसूल का, आज मेरे नबी करीम का मिलाद शरीफ है। भाई मिलाद शरीफ है, भाई बड़ा मसरूफ रहता है, बहन अक्सर कहती है मेरे घर आया कर, नहीं उसे टाइम मिलता। लेकिन उसने ना 2 जोड़े कपड़ों के खरीदे, मिठाई का डब्बा लिया और एक दिन पहले वो बहन के घर पहुंच गया, ईदी देने आया हूं। तो वो कहने लगी भाई तू तो मसरूफ रहता है, ये क्या हुआ? उसने कहा इसलिए आया हूं कि बहनों को ईद दी जाती है, तो आज तो ईद मिलादुन नबी है, तो मेरे नबी करीम का मिलाद है।
आपके ना जज्बात, आपका ज़ौक़ बताए। जब आपका ज़ौक़ लग जाएगा ना, ज़ौक़ लग जाएगा, शौक। मैं कहता हूँ मिलाद शरीफ वाले दिन मस्जिद के सदर को मस्जिद की सफाई करनी चाहिए। नाराज हो गया हो? वैसे आपकी नहीं मैं बात करता, अहले सुन्नत की मस्जिद का सदर इसी तरह होता है जिस तरह अमेरिका का सदर नहीं होता। हमारी मस्जिद का सदर इसी तरह ही होता है। वो सिर्फ आर्डर नहीं करता, वो तो कई दफा कहता है कि मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ। वो बड़े सख्त गिर अहकामात भी इल्ला माशाअल्लाह सब की बात नहीं करता। वो ड्यूटी करे, वो निकले, वो ज़ौक़ का मुजाहरा करे। जब हमारा ज़ौक़ देखे ना, हम बेटे की जब शादी रखते हैं तो जो है ना मेरी बात पर, तो हमारी बहन के खामन ने, बच्चों के फूफा जी ने बड़ी भी ज्यादती की हो ना, क्योंकि बेटे की खुशी है, चाव का टाइम है, तो लोग कहते हैं जाओ यार मना के लाओ, इसलिए कि खुशी का टाइम है। तो ठीक है, उसने ज्यादती भी किया तो क्या हो सकता है, अब खुशी है ना, बेटे की शादी पे सारे आने चाहिए, मना के लाते हैं ना लोग। सारी जिंदगी जिन रिश्तेदारों से इंसान की सुलह नहीं होती, बेटे की शादी के मौके पे मना लेते हो। चाहिए ना मिलाद से भी 2 दिन पहले बंदा चला जाए फूफी के घर उसे मनाने के लिए, तो फूफी कहे कि तू कैसे आ गया, तू तो आया ही नहीं करता था, तो बंदा फिर लब खोल के उसे बताए कि मैंने ना हुजूर का मिलाद मनाना है, तो खुशियां बगैर अपनों के मनाई नहीं जा सकती। आप ना ज़ौक़ बनाएं, आपकी तबीयत बताए, आपका ना आपका अंदाज हो, जज्बातीपन हो। सहाबा का ना हुजूर से जज्बाती रिश्ता था। हमारे यहाँ ना बहुत सारी महफिलों में ना यूं लगता है कि जैसे ना मेरी तरह के कुछ लोग अदाकारी कर रहे हैं, यानी वो एक शेर साहब खड़े हो जाते हैं, वो कुल 100 रुपया होता है उनके पास, उसके 10-10 ले लेते हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना 10-10 रुपए फेंकते हैं, और तक कहना नाथ खान आने दोबारा पढ़ शेर। और भाई तुझे जो इश्क नजर आ रहा है ना वो भारी समझ में आ रहा है, तू बैठ जा आराम से। महफिल के अंदर सबसे ज्यादा इश्क उसका नहीं होता जिसके पास नोटों की दथी होती है, बल्कि ज्यादा इश्क तो उसका होता है जो इश्तिहार लगाता है, जो मस्जिद में झाड़ू देता है, जो लंगर पे देगों पे बैठा होता है, जो खाने पकवा रहा होता है, कहता मैं आज सारी ड्यूटी करूंगा, आज मेरे नबी करीम का मिलाद है, आज मेरे रसूल करीम का। ताल्लुक 2 किस्म के होते हैं ना, कभी कभी चचा के बेटे से नहीं सुलह होती तो अब्बा जी कहते हैं कि पुत्र चल छुट्टी लेके दफ्तर से चला जा, शादी है, तो बंदा ना टाइम के टाइम जाता है, तो कई दफा रोटी भी नहीं खाता, 1000 रुपया सलामी दी और वापस आ गए, ऐसे ही होता है ना। और एक दोस्त है, उसकी बरादरी भी नहीं, ताल्लुक भी नहीं, पर है यार जराना पक्का, पक्की दोस्ती, उसकी शादी में बंदा 3 छुट्टियां लेता है, और सियाने ब्याना बंदा देगों पे बैठा होता है, यार की भी शादी। मिलाद शरीफ का मौका है तो इस तरह ना करें आपके जो चावल कभी नहीं पके वो देग पका दें, आप अपने हाथों से चावलों की सफाई करें। हाँ, वो मैं पिंडी में था परसों तरसों, तो एक साहब कहने लगे कि झंडियों के बारे में भी कोई दलील दे दे। मैं कि यार सारी उम्र ही लंघ गई बुजुर्गों की दलील देने, तो किनिया को दलील चाहिए। यानी जिसकी सारी नस्लें मिलाद मनाती हैं वो भी हर साल पूछता है कि जायज है कि ना जायज है, हर साल ही पूछ लेता है। वो भाई बस करे, किताबें लिखी पड़ी हैं, बुजुर्गों ने हद कर दी, और सही मुस्लिम में हजरत बुरैदा असलमी की रवायत झंडे पर दलालत करती है, मौजूद है। सारी जिंदगी यही पूछना है कि झंडियां लगानी जायज है कि नाजायज है, अब बस कर दे। अब ये पूछा करो कि झंडियां वुजू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी लग जाती हैं। अब ये वाला सवाल पूछा करो कि वुजू करके लगाएंगे बगैर वुजू के भी जायज है। अब थोड़ा आगे बढ़ो कि सारी जिंदगी इधर ही पड़े रहना है, जायज है कि नाजायज। भाई आपका ना मुझसे पूछा था एक दोस्त ने कि मिलाद किसको करना चाहिए, और आज जब तक बेटी मुस्कुराती नहीं बाप सोता नहीं, उसको चाहिए ना वो सुबह शाम मेरे नबी का मिलाद मनाओ। उस गरीब को मिलाद करना चाहिए जो मंडी में ले जाके बेच दिया जाता था, भेड़ों बकरियों की तरह मंडियों में बिकते थे। आज तो बाजू खड़ा करके कहता है कि जनाब मैं को किसी से लेके नहीं खाता। ये जो तुझे बोलने की ताकत दी है ये मिलाद वाले रसूल ने अता फरमा। तुम मिलाद के बारे में बहस करते हो, मिलाद उस यतीम को मनाना, तुम मिलाद के बारे में बहस करते हो। मिलाद उस यतीम को मनाना चाहिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी सबको नेकियां मिलेगी, नेकियों पर अजर मिलेगा, और जो यतीम को पाल के आएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाए। अपना ना जज्बातीपन, हुजूर के साथ वरफ्तगी हो, शौक हो। हमारे यहाँ ना वो जज्बातीपन नहीं पैदा होता,
वो ज़ौक़ नहीं पैदा होता, हालांकि होता है हमारे अंदर ज़ौक़। बोलिए, वो बच्ची जिसने MA B.Ed किया हुआ है और बड़े अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, तो शादी से पहले उसकी अम्मा आवाज़ें देती है, उठ जा सवेरे, उठती नहीं, लेकिन फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर उसकी जो सास होती है वो शिकवा भी करती है कि इसकी माँ ने सिखाया कुछ नहीं, सवेरे उठती नहीं, तो माँ ने सिखाया कुछ नहीं, सवेरे उठती नहीं टाइम पे, सारा कुछ होता है। फिर अल्लाह करम करता है तो उस बेटी को बेटा अता कर देता है। इधर देखे मेरी तरफ। अब उसको ना बेटे से जज्बाती वाबस्तगी होती, बेटी हो या बेटा हो, होती है ना। बोलिए, वो अम्मा की ऊंची आवाज 20 आवाजों पे नहीं जागती, लेकिन बच्चा रात को सी भी करता है तो उठ के बैठ जाती है। पहले वो बिस्तर से उठने में 20 मिनट लगाती थी, अब वो 1 मिनट में फीडर तक भी पहुंच जाती है, गर्म भी हो जाता है, आ भी जाता है। उसे को बंदा पूछे कि अब तुझे क्या हुआ, तो एक ही बात बताए कि मुझे ना अपने बेटे से प्यार ही बढ़ा है। वो नौजवान जो अब्बा जी देते थे ना 5,000 रुपये ईद पे, तो कहते थोड़े हैं पैसे, 5,000 का कौन सा जोड़ा आता है। वो फिर जब शादी हो जाती है, 2-3 बच्चे होते हैं, तो जवान अभी होता है, पर बीवी को कहता है बच्चों के कपड़े ले आ, मैं पुरानों से गुजारा कर लूंगा, अभी नहीं है तो परसों दोस्त की शादी पे जो जोड़ा पहना था पहन लूंगा। जब आपकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती तो बहस होती है, और जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, मैं सही कह रहा हूं आप, फिर बहस। मां ना बच्चे का नाक साफ करती है ना, कभी तो ऐसे करके फेंकती है, लेकिन सहाबा को नबी पाक से जज्बाती वाबस्तगी थी। कभी देखा है आपने कि कोई बंदा मुंह में पानी डाल के कुल्ली करे तो सामने वाला उसे अपने चेहरे पे मान ले। लेकिन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं मैंने ये मंजर देखा कि हुजूर वुजू कर रहे थे, जब कुल्ली का पानी फेंका तो मामूली बंदा नहीं, उस्मान गनी जैसा मालदार, आम आदमी नहीं, मौला अली जैसा दलेर आदमी, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सरदार, फारूक आजम जैसे मामला फहम लोग लाइनें बना के खड़े हैं कि पानी का एक कतरा मिल जाओ। असल मसला पता क्या है, बहस वो बंदा करता है जिसकी जज्बाती वाबस्तगी, आप बेशक मेरी बात पर तक पहुंचे ना पहुंचे, पर मैं बात ठीक कर रहा हूं। जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, तवज्जो है मेरी बात पर। एक सादी बात बताता हूं आपको। मेरी अम्मा जी ना मुझे हर साल ना मुहर्रम में कहती है, मैंने पुत्र ठूठियां ले आ दे। ठूठियां तो पता है कि नहीं, एडे नहीं तुसी शहरों जान के नहीं हाँ ना पे कर दे, पता तो है ठूठियां की होंगी, पता है ना जी माशाअल्लाह। मैंने चूंकि लियाउनियां पैंदियां सन ते मैं अम्मा जी ਨੂੰ कहना, अम्मा जी ठूठियां तो बगैर भी खत्म हो जाता, हाँ ये ना परात च भी हो जाता। उन्हें कहना तो मैंने गल्लां ना सुना, ठूठियां लिया दे। एक दिन मैं क्या, मैं अपने उस्तादा ने पूछा, मुफ्ती साहब फरमाया हो जाता है, कहते तू एडा मौलवी मसले ना दस। मैं ना एक दिन उन्होंने हिकमत पूछी, मैं क्या अम्मा जी मतलब जो शरीयत कैद नहीं करती तुझे कदों कैद किया है। बड़ी शानदार बात की। सादे लोगों के ना कई दफा दलाइल सादे होते थे, अब तो बहस का दौर है, सारी जिंदगी बहस कर करा के भी लोग नहीं मानते। मेरी अम्मा जी कहने लगे, पुत्र इमाम हसन हुसैन दे नाम ते किसी को खीर देनी ते उन्होंने कहना साड़ी प्लेट भी वापस करके जा, सरकार दी औलाद दे नाम ते जो दे दिता सो दे दिता। ये वो वाला माशरा नहीं जिसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाया। इसलिए पलट कर देखें हुजूर हमारी कहाँ तरबियत कर रहे हैं, उन चीज़ों पर गौर फरमाएं। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को रोता देख के रो पड़ते थे, किसी को रोता देख। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, एक मैदान से हम गुजर रहे थे तो साथ ही एक बाग था, वहां बड़ा रश था, लोग बड़े इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग जमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पता करो क्या हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और वापस जाके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक ऊंट पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, लोग उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में रस्सा है, किसी के हाथ में नेजा, काबू नहीं आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पागल हो गया, वो काटता फिर रहा है, आप मेहरबानी करें, वो तकलीफ देगा। फरमाया अबू बकर मुझे जाने दो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर जैसे ही खड़े हुए ना, ऊंट हुजूर की तरफ भागा, नबी पाक की तरफ लपका हो। मैं भी डरने लगा, जितने लोग थे परेशान होने लगे। दौड़ा आया ऊंट, हम सब परेशान थे, लेकिन महबूब के चेहरे पर बड़ा ही इत्मीनान था। फरमाते ऊंट दौड़ा आया और सीधा आके उसने हुजूर के कदमों पे सजदा किया। और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उसने हुजूर के कान में कुछ कहा तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। किसके दुख पर? ओ भाई गौर तो करो, इस बात को समझो तो सही। तू तो जीते जागते हंसते खेलते इंसान के दुख पर परेशान नहीं होता। तू तो मुसलमान पड़ोसी, साथ रहने वाला, बलने वाला, बसने वाला, इसकी जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा तूने आंखों में देखा, तुझे उसके दुख पर परेशानी नहीं होती। अरे एक ऊंट कान में बोला, इस कैफियत को समझ तो सही यार, इस रंग को महसूस तो करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। के कान में कुछ कहा, हुजूर रो पड़े। और फिर महबूब ने फरमाया रस्सी लाओ। मालिक रस्सी लाया तो हुजूर ने उसके नाक में नकेल डाली, उसने खामोशी से डलवा दी। हुजूर ने उसके हाथ में दिया और फरमाया तू कहता है पागल हो गया। वो शिकायत कर रहा है कि हुजूर गर्मी में तप जाता हूं पर पानी का घूंट नहीं देता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। महबूबा मैं तेरे सिवा किसको दुख बताऊं? काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ओ भाई मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मिजाज अता फरमाया वो तो इस तरह का है कि जानवर को भी दुख हो तो महबूब पाक को तकलीफ होती है। सहाबा फरमाते हैं कि दो आदमी घोड़े पे बैठे थे, गौर करना मेरी बात पर। दो आदमी घोड़े पे बैठे, किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, रस्ते में मुलाकात होगी तो घोड़ों पे बैठे आपस में बातें कर रहे, शुरू नहीं कर देते गुफ्तगू लोग। हमारे जमाने में तो कोई बंदा थोड़ा तगड़ा हो, वो कार पे आ रहा हो, जैसे कि दूसरा चौधरी कार पे आ जाए तो सारी सड़क भी ब्लॉक हो जाए तो कहने ने कोई आग बुझा नीचे जाके, तो नहीं पता दो चौधरी खलोते ने, इंतजार करो, ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि हम शेख साहब हैं, कल ही तो कार नहीं खरीदी यार, तुम क्या तो रास्ता दे दो, ये कैसे हो सकता है? और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग आंखों से देखे, बड़े अजीब लोग शीशा खोल के गाड़ी का कहेंगे ठहर जा, तो जल्दी है भाई, तू शारा आम पे खड़ा है और तुझे रास्ता खोलना तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। लेकिन वो कहता है कि 4 फुट में आपसे डी है, तो तू कैसे कहता है कि रास्ता? ये जो खूबसूरत मिजाज कौमें होती है उनका ये रवैया नहीं होता कि जहां तबीयत चाहे, जहां जिस तरह उसका दिल चाहे वो करे। तो ख्याल करें किस चक्कर में कौम पड़ गई। इसका मतलब ये है कि जिसको मर्जी तकलीफ देते फिर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन मस्जिद बना दी है, जहां नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। लेकिन फरमाया रस्तों में नमाज ना पढ़ना, लोगों ने गुजरना है, रस्तों में शारा आम पर नमाज की नीयत बांधने की इजाजत नहीं है। तो मेरे अजीज भाई गौर फरमाए, दो आदमी, एक उधर से घोड़ा लेके आ रहा है, किधर से जा रहा है, दोनों जा रहे थे, आपस में ना दोनों ने बातचीत शुरू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो सरकार रुके, उन दोनों को फरमाया नीचे उतरो भाई, घोड़ों से उतर आए। तो 2 जुमले महबूब ने खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, 2 जुमलों में बात महबूब ने मुकम्मल कर दी। फरमाया जानवरों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, सवारियां बनाया करो इन्हें कुर्सियां। जब बैठना हो तो नीचे उतरो, किसी कुर्सी पे बैठ के बात करो, ये सवारी के लिए है। इनके ऊपर बोझ उस वक्त बनो जब तुमने सफर करना है। तुम बोझ बन गए तो जो महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जज्बात रखें कि किसी आदमी ने जानवर को खड़ा करके सीधा सवारी कर ली, महबूब तो उसे मना फरमाए। और यहां हम जीते जागते लोगों का रास्ता रोकें, एम्बुलेंस को रास्ता ना दें, उन गाड़ियों को जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच रही हैं वो कहें कि साहब रास्ता देना पसंद नहीं कर रहे। तो भाई रहम और करम जिन जज्बात में होता है, जिन सीनों में होता है, उन सीनों को मेरा रब महबूब रखता है, उनको पसंद करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तरीकत में, तसव्वुफ में, मंतक में, फलसफे में, हदीस में, तफसीर में हर जगह उम्मत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। एक आदमी आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, वो कहता मुझे इमाम साहब ख्वाब में मिले।
تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس تدریس واعظ نصیحت تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی۔ کب ہو کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیرے کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے دادا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔
इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लाटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मेरी किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ। मैं उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद है, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात है कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हाल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखें कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया, और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का, तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहाँ पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल उस्मान भाई AR के ऊपर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के बयानात मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।